And now we will be doing some practice about whatsoever we have learned in terms of converting records that we kept on single entry into the double entry system of accounting, obviously. Okay, you know very well that what is in fact the end result of double entry bookkeeping system. The end result is that we are able to extract a trial balance and ultimately we prepare our balance sheet. Okay, and obviously before the balance sheet comes income statement. Okay, so यहाँ पर आप ये देखेंगे कि after converting the record that we had kept on single entry basis, उसको जब convert करेंगे आप double entry में, तो directly you will see कि you would be able to prepare income statement, or in a way statement of profit loss, and the statement of financial position or the balance sheet without having trial balance with us. So this is what you are going to learn in this practice question now. So your 100% focus is required first to understand the question, and then we will be looking into its answer. So this part of module is question only. So understand this question, that sample departmental store which was not keeping its records on double entry bookkeeping system, its accountant could produce these few information, which is statement of affairs on the opening date, obviously. Okay, then cash book, 2-column cash book, and we have already learned what is 2-column cash book. उसमें cash का column और bank का column हुआ करता है. Trade receivables account and trade payables account, along with obviously year-end adjustments. Yes, you remember very well. Okay, ये information आप देखिए, statement of affairs on 1st of January 20x2 is in front of you, and statement of affairs contains what? Opening balances of assets and liabilities, and the end result is the balancing figure, which is owner's equity. So this is what you can look into it, कि आपके पास assets हैं, liabilities हैं, और balance आपके पास मौजूद है owner's equity का, which is in fact the net assets. Okay, well, ये 1st January की statement of affairs है. It means all these are the opening balances. Got the point? Okay, यहां से अब हम आगे बात को लेकर चल रहे हैं. हमारे पास कैश बुक है, और उस कैश बुक में एज आई टोल्ड यू एक कैश का कॉलम है और एक बैंक का कॉलम है, एक रिसीट साइड पर, और एक कैश का कॉलम आपको और बैंक का कॉलम नजर आ रहा है पेमेंट साइड पर. वेल, तो ये जी ओपनिंग बैलेंस आपके पास कैश और बैंक के. रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर, कैश सेल्स हमें कैश में रिसीव हुई. डेटर से जितना भी कैश रिसीव हुआ वो बैंक में रिसीव हुआ, हमें हार्ड कैश रिसीव नहीं हुआ डेटर से, जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं. नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि आपके पास पेमेंट साइड है, वहां पर क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट की थ्रू चेक्स, कैश में आपने कोई उसको पेमेंट नहीं की, अपने अकाउंट्स पेएबल्स या ट्रेड पेएबल्स को. रेंट आपने कैश में भी पे किया और बैंक में भी पे किया. ओके, देन जनरल एक्सपेंसेस थ्रू बैंक है, ड्राइंग्स थ्रू कैश है, बैंक में नहीं है. यहां पर एक बात यही आपको समझाता चला जाऊं, व्हेन वी से रिसीट साइड ऑफ कैश, उसमें ये तमाम डेबिट इफेक्ट्स हैं. इनके सेकंड इफेक्ट जो होंगे वो क्रेडिट होंगे. लाइक जो डेटर्स है उसमें आपको डेटर्स को या अकाउंट्स रिसीवेबल्स को क्रेडिट करना होगा. जो सेल्स हैं उसमें आपको सेल्स को क्रेडिट करना होगा. ठीक है जी. तो यूं आपकी जो है वो कैश डेबिट और डेटर्स या सेल्स क्रेडिट, और इधर बैंक डेबिट डेटर्स क्रेडिट. ओके, वेल, यहां जो आपके पास साइड है पेमेंट, दिस इज in fact showing all the credit balances, cash credit and bank credit. So the reciprocal effect you will be showing in the debit side of the relevant ledger account. जैसे यहाँ पर supplier की बात आ रही है, तो इसका ledger account कौन डेबिट हो रहा है? Obviously creditors account, जिसे आप trade payable भी कह दें या accounts payable कह दें, whatever, वो डेबिट हो रहा है. ओके, रेंट में अब देखिए, रेंट कैश या बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है,
यहां आपको रेंट डेबिट करना होगा। ये रेंट डेबिट होगा विद द टोटल अमाउंट लाइक 50 से और 200 से। 250 से रेंट डेबिट होगा, ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट कैश क्रेडिट हो चुका है, बैंक क्रेडिट हो चुका है। तो यूं हमने इसकी जो है वो डेबिट या क्रेडिट रेसिप्रोकल इफेक्ट्स लेना होते हैं। इन द सेम वे ये ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट है, यानी कि डेटर्स अकाउंट भी आप इसको कह सकते हैं, और ये ट्रेड पेएबल्स अकाउंट है, यानी कि आप क्रेडिटर्स अकाउंट भी इसको कह सकते हैं। ओके, अब यहाँ आपको जो सेल्स दिख रही हैं ये क्रेडिट सेल्स है, इसके पीछे डेबिट क्रेडिट अब आपका बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए ये डेटर्स को डेबिट है, ये डेटर्स अकाउंट डेबिट हुए हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट हुए हैं, तो आप इसकी सेल्स को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से ये आप देखेंगे 9500 कैश रिसीव हुआ डेटर से। इसका सेकंड इफेक्ट जरा इसको आपको मज़ा आना चाहिए इस बात को लर्न करने में। ये क्रेडिट साइड पर है ना, तो ये देखिए आपको डेबिट साइड पर बैंक में ये 9500 दिख रहे हैं। ऑलराइट, तो ये बैंक डेबिट हुआ और डेटर्स क्रेडिट हो गया सेम अमाउंट से, तो इसकी डेबिट क्रेडिट आपको इसी में नजर आ गई। ओके, इसी तर्ज पे आप इसको भी साथ ही देख लीजिए, ये आपके क्रेडिटर्स डेबिट साइड पर नजर आ रहे हैं 7200, किसकी वजह से? पेमेंट हुई है इनको। अब आप देखिएगा कि ये पेमेंट साइड पर 7200, ओके, बैंक की क्रेडिट साइड पर, पेमेंट साइड की क्रेडिट साइड है ना, तो आपका बैंक क्रेडिट हो रहा है और ट्रेड पेएबल्स या क्रेडिटर्स डेबिट हो रहे हैं। ऑलराइट, और ये जो आपको क्रेडिट साइड पर दिख रहा है परचेजेस, ये आप परचेजेस के अकाउंट में डेबिट करेंगे जब आप परचेजेस बना रहे होंगे, इनकम स्टेटमेंट में इसको अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। तो जी ये डेबिट एंड क्रेडिट का आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अगर ये डेबिट एंड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो दे वुड बी अ डिसास्टर फॉर यू। यही वो बात है जो कि मैं हमेशा से कहा करता हूं, इफ द स्टूडेंट इज स्ट्रॉन्ग इन दिस चैप्टर, जो सिंगल एंट्री का चैप्टर कहलाता है, इस सिंगल एंट्री के चैप्टर में जो स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग हो गया उसने इट मींस अपनी बुक कीपिंग सारी की सारी जो है उसको बड़ा अच्छे तरीके से लर्न कर लिया। तो इस चैप्टर पे आपकी तमाम वो लर्निंग्स अप्लाई हो रही हैं जो कि आपने प्रीवियसली सीख रखी हैं इन टर्म्स ऑफ योर डेबिट एंड क्रेडिट। और कुछ अभी आपसे डिस्कशन में अगले मॉड्यूल्स में मैं फर्दर कुछ चीज़ें कैलकुलेशन ओरिएंटेड डिस्कस करूंगा। तो ये वो चैप्टर है जो ऑल टुगेदर आपको कैलकुलेशंस रिलेटेड एंड डेबिट एंड क्रेडिट मींस अकाउंटिंग रिलेटेड चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज करवाता है और स्ट्रॉन्ग करता है आपको इसके अंदर। वेल, ये ईयर एंड एडजस्टमेंट इसी क्वेश्चन से रेलेवेंट है। क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1700 की, ऑब्वियसली क्लोजिंग इन्वेंट्री एसेट में लेकर जाएंगे उसका डेबिट, और परचेजेस को क्रेडिट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाएंगी वो परचेजेस। ओके, जब परचेजेस में क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करते हैं तो इनफैक्ट हम परचेजेस को क्रेडिट कर रहे होते हैं अगेंस्ट द डेबिट इन इन्वेंट्री अकाउंट। ओके, वेल, रेंट आपके ओइंग है, आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सपेंस है लेकिन यू हैव नॉट येट पेड, रेंट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। विल लुक इनटू इट्स आंसर कि इसका किस तरह डेबिट क्रेडिट हुआ। डिप्रीसिएशन, आप फिक्सचर की जो अमाउंट होगी उसका 10% अप्लाई करेंगे, यू विल गेट एन अमाउंट ऑफ डिप्रीसिएशन, दैट वुड बी योर एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन क्रेडिट जो कि आपका फिक्स्ड एसेट्स में से माइनस होगा। So this is how we will be preparing income and expenditure account, income statement or statement of profit or loss and the balance sheet. Okay, तो ये हमारा एक किस्म का कंप्लीट हो जाता है कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री जब हम ये दो स्टेटमेंट बना लेते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल में इसका आंसर आपसे डिस्कस करता हूं।